برکینا فاسو کا ایک واقعہ ہے کہ ایک خاتون جو مذہباً عیسائی ہیں ریڈیو پر ہمارے پروگرام بڑے شوق سے سنتی ہیں، اور جب خلیفۃ المسیح کا ذکر ہوتا ہے تو کہتی ہیں یہ اللہ کا بندہ ہے جس کی خدا سنتا ہے۔ ان کے ایک بیٹے کا جس کی عمر 17 سال ہے ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ شدید زخمی ہو گیا، ہسپتال میں داخل کروایا گیا۔ جب اس عیسائی خاتون کو اطلاع ملی تو اس نے خلیفۃ المسیح کا نام لے کر دعا کی کہ اللہ اس خلیفہ کے نام پر میرے بچے کو شفا دے اور اسے 3 دن کے اندر شفا دے۔ چنانچہ تیسرے دن ہسپتال سے فون آیا کہ آپ کا بچہ شفا پا گیا ہے، آپ اس کو آ کر لے جائیں۔ اس کے بعد یہ خاتون اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ ہمارے مشن ہاؤس آئی اور کہا کہ میں آپ کو خوشخبری دینے آئی ہوں کہ آپ کا خلیفہ برحق اور سچا ہے۔ میں نے اس کا واسطہ دے کر خدا تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ خدا تعالیٰ میرے بیٹے کو 3 دن میں شفا دے دے۔ خدا تعالیٰ نے 3 دن میں ہی میرے بیٹے کو شفا دے دی، اور خدا اس کی دعائیں، خلیفہ کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ بینن سے ہمارے ایک معلم بیان کرتے ہیں کہ حفیظو نامی ایک آمدی دوست کا بچہ گم ہو گیا۔ اس پریشانی میں انہوں نے سارے علاقہ کی خاک چھان ماری، ریڈیو پر بھی اعلانات کروائے، مگر بچہ نہ ملا۔ پریشانی اور بے بسی کی حالت میں ان کا فون آیا کہ میرا نہیں خیال کہ میرا بچہ مجھے ملے گا۔ مولن صاحب کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا مایوسی گناہ ہے، ہم تو ایسے امام کے ماننے والے ہیں جس کا دعویٰ ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہمارا ایک خلیفہ ہے۔ اس نسخہ کو آزما کر دیکھو، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، تم بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ چنانچہ بچے کے والد کہتے ہیں کہ میں سجدہ میں پڑ گیا اور واسطے دینے لگ گیا کہ اللہ اس علاقہ میں باقی تو کسی نے تیرے خلیفہ کو قبول نہیں کیا، صرف میں نے قبول کیا ہے، اور تیرا امام، تیرا خلیفہ ضرور سچا ہے۔ میں تجھے اس کی سچائی کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے میرا بچہ دے دے۔ کہتے ہیں کہ میں کافی دیر دعا میں روتا رہا۔ دعا ختم کرنے کے بعد میں اس راستہ سے گھر لوٹ رہا تھا جہاں سے بچہ گم ہوا تھا۔ اب یہ راستہ میں ہی تھا کہ اچانک جنگل میں میرا بیٹا مجھے نظر آ گیا۔ خلافت کی برکت اور احمدیت کی سچائی کا ایک عظیم الشان یہ معجزہ تھا جو کہتے ہیں میرے لیے ظاہر ہوا۔ ایک اور واقعہ امیر صاحب برکینا فاسو بیان کرتے ہیں کہ ایک احمدی دوست جن کا نام سعیدو ہے، کام کی تلاش کے سلسلہ میں ہمسایہ ملک آئیوری کوسٹ جانے کی تیاری کی اور مالی کے راستے اپنے دوستوں کے ہمراہ آئیوری کوسٹ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب ایک علاقہ یام سکرو پہنچے تو پولیس نے ان کو روک لیا اور کہا کہ آپ ہمارے ملک میں گھسنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ان کو اور ان کے 3 دوستوں کو لائن میں کھڑا کر دیا اور کہا کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں، ان کو شوٹ کر دو، گولی مار دو۔ سعیدو صاحب کہتے ہیں انہوں نے میرے 3 مالین جو مالی کے دوست تھے ان کو تو چھوڑ دیا، مجھے بدستور کھڑا کیے رکھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ پولیس والے مجھے اب گولی مار دیں گے۔ اس پر میں نے دعا کی کہ یا اللہ، اگر میرے پیارے آقا خلیفۃ المسیح الخامس تیری طرف سے ہیں تو آج ان کی بدولت میری جان ان پولیس والوں سے چھڑوا دے۔ کہتے ہیں کہ ابھی میں نے دعا ہی کی تھی کہ اس اثناء میں ایک پولیس والا میرے پاس آیا اور کہا کہ یہ آدمی شکل سے دہشت گرد نہیں لگتا، اس کو واپس اس کے ملک بھجوا دو۔ چنانچہ اس نے ایک گاڑی رکوائی اور ڈرائیور کو کہا کہ اس کو بغیر کرایہ کے لیے برکینا فاسو کے بارڈر پر اتار دو۔ چنانچہ اس طرح میں واپس اپنے گاؤں پہنچ گیا اور تمام واقعہ تفصیل سے سنایا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر امیر صاحب سے کہا کہ آج کے بعد جماعت کا کوئی کام ہو، کوئی جلسہ ہو، کسی قسم کی خدمت ہو، میرا نام سب سے پہلے لکھنا، کیونکہ آج خدا نے مجھے خلافت کی تجلیات دکھا دی ہیں، میں تو موت کے منہ سے بچ کر آیا ہوں۔ بینن سے ہمارے ایک
मौलवी بیان करते हैं कि चंद दिन हुए एक नौमबाए दोस्त आए कि मरबी साहब मेरे घर आए, मेरी बीवी की हालत बड़ी ख़राब है, मैं अपनी अहलिया को लेकर इनके घर चला गया। हमारे मौलवी कहते हैं देखा कि इसकी जचगी यानी डिलीवरी का वक्त करीब है और इसको तेज बुखार भी है और रहम की तकलीफ भी है जिसकी वजह से डिलीवरी नहीं हो रही। गुज़श्ता 2 बार भी ऐसा हो चुका है जिसमें या बच्चा बच सकता है या वालदा, चुनांचे दोनों बार वालदा को बचा लिया गया लेकिन बच्चे की कुर्बानी देनी पड़ी। दोनों बार बच्चा इनका फौत हो चुका था। अब तीसरी बार भी यही कैफियत थी। मौलवी साहब बताते हैं कि ऐसी हालत में तो हम दुआ के साथ साथ दुआ के लिए अपने इमाम को, अपने खलीफा को लिखते हैं, लेकिन अब वक्त इतना भी नहीं था कि हम दुआ के लिए हजूर को लिखते, क्योंकि वो जिंदगी मौत की कशमकश के मुब्तला थी और किसी वक्त भी कुछ हो सकता था। तो हमने कहा आओ हम दुआ शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला को उसके पाक नामों का वास्ता देकर और खलीफातुल मसीह का वास्ता देकर दुआ करने लगा और दुआ ख़त्म करने के बाद सूरह फातिहा पढ़कर पानी पर फूंका और इस औरत को पिला दिया। ऐसे 2-3 बार किया। मुसलसल हुजूर का वास्ता देकर दुआएं करता रहा। तीसरी बार जब उसको मैंने पानी पिलाने के लिए भेजा तो उसका खावंद खुशी खुशी बाहर आया, कहने लगा अल्लाह ने मेरी बीवी भी बचा ली है और बेटा भी दे दिया है। इस नौमबाए का ईमान, इसकी खिलाफत से मोहब्बत, इसका खिलाफत से ताल्लुक, इसकी खिलाफत से अकीदत, वो कहते हैं इतना ज़्यादा मजबूत हुआ और वो उसके बाद उसका जमात से एक बड़ा गहरा ताल्लुक कायम हो गया और कहने लगा आज मैंने खिलाफत का एक जिंदा निशान देखा है। अमीर साहब कांगो इंशाद साहब बयान करते हैं कि किन्हीं के एक जमात है हमारी, वहाँ के एक दोस्त, हमदी दोस्त बयान करते हैं वो एक स्कूल में उस्ताद हैं। कहते हैं काफ़ी अर्सा से मुझे तनख्वाह नहीं मिली थी, मैं सख्त परेशान था। इस वजह से मैं मुसलसल हुजूर को दुआ के लिए ख़त लिखता रहा। मुझे कामल यकीन था कि हुजूर की दुआ के नतीजा में मेरी मुराद पूरी होगी और मुझे मेरी तनख्वाह मिल जाएगी। कहते हैं कुछ अर्सा पहले, चंद महीने हुए हैं, एक लंबे अरसे बाद हुकूमत ने सिर्फ उस इलाका के 136 असातिज़ा में से सिर्फ 3 की तनख्वाहें भिजवाई हैं और उन 3 में से एक खाकसार था, एक मेरा नाम था। कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैं कामल यकीन से कहता हूँ कि खलीफा वक्त से ताल्लुक का ही नतीजा है और खलीफा वक्त की दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने मेरी मुराद पूरी कर दी और 136 में से जिन 3 का इंतखाब हुआ उनमें से एक नाम मेरा था। हमारे एक मौलवी गाना से हैं, ये बयान करते हैं कि एक मौलवी, दूसरे मौलवी इब्राहिम अब्दुल सलाम है, इनकी शादी को 2 साल का अरसा हुआ था, औलाद नहीं हो रही थी। उन्होंने सारे टेस्ट करवाए, जैसे बात कुमासी जो वहाँ गाना का एक बड़ा शहर है, वहाँ से लैब टेस्ट भी करवाए, जिससे पता चला कि इनकी बेगम का कोई ऐसी बीमारी है कि डॉक्टरों ने कहा अब इनके यहाँ बच्चा नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ट्यूब के जरिए ही औलाद मुमकिन है, इसके अलावा इनके यहाँ बच्चा नहीं हो सकता, नामुमकिन है। तो मौलवी साहब कहते हैं कि मैंने सारा मामला हुजूर अनवर की खिदमत में दुआ के लिए लिख कर भेजा और सारी रिपोर्ट में भिजवा दी कि डॉक्टर ये कहते हैं कि मेरे यहाँ औलाद का होना, बच्चा पैदा होना नामुमकिन है। हुजूर को मैंने दुआ खत लिखे, अब ये 2 या 3 हफ्ते ही हुए थे कि मौलवी साहब ने बताया हमारे मुबल्लिग को वहाँ को कि मेरी अहलिया तो उम्मीद से है। हुजूर को दुआ के खत लिखने के बाद 1-2 हफ्ते के अंदर मेरी अहलिया तो उम्मीद से हैं और उसके बाद 5-9 माह का अरसा गुजरा। अल्लाह ताला ने इसी ये 2 महीने 3 महीने पहले जून में उनको बेटी अता फरमाई और दोनों माँ और बेटी सेहतमंद हैं, जबकि डॉक्टर ये कहते थे कि तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता। आइवरी कोस्ट जमात के एक मुखलिस अहमदी
जमात अब्दुल्ला साहब के बड़े भाई को पुलिस पकड़ कर लेगी और अदालत ने नशा करने और बेचने के जुर्म में 20 साल कैद की सजा सुनाई। वो बयान करते हैं कि इतनी परेशानी हुई, जब 20 साल कैद की सजा सुनाई गई तो मैंने फौरी हुजूर आमला की खिदमत में दुआ का खत लिखा। वो खुद भी अपने बड़े भाई की रिहाई के लिए दुआ करनी शुरू कर दी। फिर एक दिन वो कहते हैं कि मैं हुजूर की खिदमत में दुआ के खत लिखता रहा। एक दिन ख्वाब में मैंने खलीफतुल मसीह खामस को देखा। हुजूर ने मुझे ख्वाब में फरमाया, आप परेशान ना हो, सब्र करें, आपका बड़ा भाई जल्द रहा हो जाएगा। सुबह जब उठा तो दिल को काफी तसल्ली हुई और यकीन था कि इंशाअल्लाह अब जल्द खुदा कोई मौजज़ा दिखाएगा। कहते कुछ अर्सा बाद मेरी वालदा की, यानी कि जो बताते हैं उनकी वालदा की तबीयत खराब हो गई और अस्पताल के इंतजामिया ने उनको दाखिल कर दिया। वो बयान करते हैं कि उसके बाद जब अस्पताल से वापस घर आया तो मेरी बड़ी बेबसी की कैफियत थी। बहुत परेशान था कि वालदा अस्पताल में बीमार है, भाई भी जेल में है। चुनांचे सख्त परेशानी में रात को सोया तो दोबारा हुजूर अनवर को देखा कि हुजूर अनवर ख्वाब में आए हैं। अब ये बात सुनने वाली है। कहते जब मैं रात को सोया परेशानी की हालत में तो दोबारा हुजूर अनवर ख्वाब में आए और मुझे फरमाया, उठो और जाकर दरवाजा खोलो। ये ख्वाब में हुजूर फरमाते हैं। वो कहते हैं कि इसके बाद मैं बेदार हुआ। वाकई जब मैं उसके बाद बेदार हुआ नींद से तो उस वक्त दरवाजा पर कोई दस्तक दे रहा था। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो क्या देखता हूं कि मेरा बड़ा भाई दरवाजे पर खड़ा है। मुझे यूं हैरान देखकर कहने लगा कि पुलिस ने मुझे रहा कर दिया। जमात अब्दुल्ला साहब बयान करते हैं कि खलीफतुल मसीह की दुआएं ही हैं जिन्होंने बज़ाहिर एक नामुमकिन रहाई को, जबकि उसको 20 साल कैद की सजा दी गई थी, उसको चंद दिनों में रहा कर दिया। उसकी भी इत्तला हुजूर ने आकर रोया में दी कि जाकर दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो तो भाई बाहर खड़ा था। सीरिया के एक दोस्त बयान करते हैं कि मेरा बेटा सीरिया में एक पार्क में खेल रहा था। खाना जंगी के दौरान एक बम इसके करीब आकर गिरा और इसका एक टुकड़ा मेरे बेटे की खोपड़ी को फाड़ता हुआ इसके दिमाग में दाखिल हो गया। मैंने उसे अस्पताल ले जाते हुए अपने आमदी अहबाब को व्हाट्सएप पर पैगाम दिया कि मेरे बेटे की जिंदगी और शफायाबी के लिए कोई मेरी दरख्वास्त अभी फौरी हुजूर को पहुंचा दे। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने बताया कि हालत बहुत खतरनाक है। ऑपरेशन 7 से 9 घंटे जारी रह सकता है। बच्चा का मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होना मुश्किल होगा क्योंकि दिमाग का पानी बह रहा है। इसलिए हो सकता है कि बच्चा की सुनवाई या बिनाई या गोजाई मुतासर हो सकती है या बच्चा जुज़वी फालिज का शिकार हो सकता है। और दिमाग के पानी के ज़ाय होने की हालत में ये कभी नहीं हुआ आज तक कि मरीज बिल्कुल सेहतमंद हो जाए। कहते हैं कि 2 घंटे बाद डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन खत्म हो गया। मैंने कहा आप 7 घंटे का कह रहे थे। इसने कहा मुझे भी हैरानी है। डॉक्टर कहने लगा अब हम बशिद्दत बच्चे के होश में आने के मुंतज़र हैं। तो ये कहते हैं, बच्चे के वालिद कहते हैं, मैंने उसी वक्त हुजूर अल्लाह की खिदमत में दुआ के लिए एक और दरख्वास्त इरसाल कर दी। 2 दिन बाद बच्चा होश में आया तो हमें देखकर मुस्कुराया। इसे साबित हुआ कि वो देख सकता है, पहचान सकता है। इससे पूछा हमने कैसा महसूस करते हो तो बोला अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब था कि शमाई भी ठीक है, वो सुन भी सकता है और बात भी कर सकता है और बोल भी सकता है। अब आखिरी बात यह थी कि जुज़वी फालिज का डर था। चंद अय्याम के बाद जब उसे उठकर चलने का कहा गया तो पहले तो वो लड़खड़ा कर बैठ गया। हमें खतरा लाहिक हुआ, लेकिन कुछ देर के बाद वो उठा और ठीक ठाक चलना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने 1 माह के बाद दोबारा चेकअप के लिए आने के लिए कहा। जब 1 माह के बाद गए तो उसे देखते ही डॉक्टर ने कहा तो इसको किसी चेकअप की जरूरत नहीं, ये मुकम्मल सेहतमंद है।
मसूफ लिखते हैं, ये एक अजीम शान मौजज़ा था जो सिर्फ और सिर्फ खलीफा वक्त की दुआ से हुआ। आज ये बच्चा यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है। हमारे एक मुबल्लिग जो एस्टोनिया के हैं, जो यूरोपियन ममालिक में एक मुल्क है, हमारे नौआमदी जाहिद कीन उनका नाम है, वो कोरोना वायरस की वजह से बेरोजगार हो गए। उन्हें तवज्जो दिलाई गई, हमारे वहाँ मुबल्लिगों ने कहा कि आप हुजूर की खिदमत में दुआ का खत लिखें, मुलाजमत के मिलने के लिए दुआ की दरख्वास्त करें। तो उन्होंने हुजूर की खिदमत में खत लिखा। खत भेजने के 2 दिन बाद उनका फोन आया कि मुझे मुलाजमत मिल गई है, और एक जगह छोड़कर कई जगहों से मुलाजमत की ऑफर आई है। हालांकि काफी अरसा उनका बगैर मुलाजमत से गुजरा, उन्होंने पूरी कोशिश कर ली, कहीं मुलाजमत नहीं मिलती थी। लेकिन जब हुजूर की खिदमत में दुआ का खत लिखा, 2 दिन बाद कहने लगे कि मुझे कई जगहों से मुलाजमतों की ऑफर आ गई और मुझे एक जगह कबूल करके बाकी हर जगह इनकार करना पड़ा। कहने लगे हैं कि खलीफतुल मसीह की दुआ का मौजज़ा है, खलीफतुल मसीह की दुआ का असर है। जो काम एक अरसा से नहीं हो रहा था, हुजूर की दुआ से 2 दिन के अंदर अंदर हो गया। इस वाकया में वो कहते हैं कि इनके ईमान में बहुत तरक्की हुई है, वो पहले से बहुत बढ़कर खिलाफत के साथ मोहब्बत और कीदत में वाबस्ता हो गए। हमारे कांगो किनशासा एक लोकल मिशनरी कैसर अहमद बयान करते हैं कि मेरी अहलिया उम्मीद से थी, लेकिन बात पेचीदियाँ थी। ये भी 1-2 महीने कबल का वाकया है। जब वदा हमल का वक्त आया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा। हम सब घर वाले परेशान हो गए, क्योंकि ये एक ऐसा दूर दराज इलाका था, एक गांव था जहां हम रहायश पजीर थे, और यहाँ सेहत की सहूलियात ना होने के बराबर है। ऑपरेशन की भी वहां कोई ऐसा इंतजाम नहीं था। नाचे इस परेशानी में वो मौलवी साहब कहते हैं कि मैंने उसी वक्त हुजूर की खिदमत में दुआ का खत लिख दिया। ये सूरत हाल, अब ये हालत है। जब इनकी अहलिया को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, डॉक्टर जो भी उनके पास उसको मुयसर था उसके मुताबिक ऑपरेशन की तैयारी ही कर रहे थे और ये दुआ कर रहे थे, तो नॉर्मल डिलीवरी हो गई। ये बात अस्पताल के सब अमला और खुद उनके लिए एक मौजज़ा से कम नहीं थी, और ये सिर्फ हुजूर की दुआ के सबब से अल्लाह ताला के फजल से मुमकिन हुआ। डॉक्टर ने कहा कि हम भी हैरान हैं, ये डिलीवरी पेशेंट के बगैर नहीं हो सकती थी। लेकिन जो हुजूर के उन्होंने दुआ के लिए खत लिखा उसी वक्त, कहते अभी खत लिखे हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ था, शायद आधे पौने घंटे के अंदर अंदर नॉर्मल डिलीवरी हो। तो इस तरह अल्लाह ताला निशानात दिखाता है उन लोगों को जो दूर दराज के इलाकों में, गाँव में, ऐसी जगहों पर बैठे हुए हैं, जहाँ ना बिजली है, ना पानी है, ना रास्ते हैं, ना ज़राए मवासलात हैं। और एक खलीफा वक्त के पैगाम में, खलीफा वक्त की आवाज़ में खुदा ताला ने इस कदर बरकत रखी है कि सुनने वाले की काया पलट जाती है और उसके अंदर एक इनकलाब पैदा हो जाता है। एक जर्मन खातून जिन्होंने इमसाल बैत करने की तौफीक पाई, वो खुद बयान करती हैं कि जब मैंने पहली मरतबा हुजूर अनवर की आवाज़ माइक पर सुनी तो हुजूर की आवाज़ मेरी रूह में उतर गई। उस वक्त मेरे जो जज्बात और कैफियत थी वो हम बयान नहीं कर सकते। मैंने खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस किया, एक खुशी और सुकून की कैफियत थी जिससे मैं सरशार थी। मैं जान गई थी कि जिस सुकून और रूहानियत की तलाश थी वो मुझे आज अहमियत की गोश्त में आकर मिल गया है। वो कहती हैं कि मैंने बैत करने का फैसला हुजूर की आवाज़ सुनने के बाद कर लिया था। खलीफा वक्त की आवाज़ में वो अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, खलीफा वक्त के पैगाम में वो बरकत रखी है कि गैरों की काया पलट जाती है, इंसान के अंदर एक अजीम इनकलाब पैदा हो जाता है। अब जमल खतून बयान करती हैं कि मैंने बैत करने का फैसला हुजूर की आवाज़ सुनने के बाद कर लिया था। हुजूर अनवर की पुरशौकत शख्सियत से इतनी मोहब्बत मुझे मिली, इतना सुकून मिला और रूहानी कशिश महसूस हो रही थी कि मैं बयान नहीं कर सकती। अब मैं बतौर आमदी मुसलमान अपनी नई जिंदगी का आगाज कर चुकी हूँ। तो खलीफत की जो बरकत में से एक बरकत यह भी है कि खलीफतुल मसीह से एक मुलाकात इंसान को बदल कर रख देती है और इसके वजूद में एक इनकलाब बर्पा कर देती है। कोसोवो जो यूरोप का एक मुल्क है,
وہاں کے ایک دوست میناٹور صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں جو میرے احساسات ہیں حضور کو مل کر، جو میرے جذبات ہیں، میں ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ خلیفۃ المسیح کے سے ملنے کے بعد جو چند لمحات کی ملاقات تھی، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میری زندگی مکمل اور کامیاب ہو گئی ہے۔ میری زندگی میں ایک خواہش تھی کہ مجھے کوئی ایسا وجود ملے جو دنیا کی فکر کرنے والا ہو اور جس سے مل کر میرے تمام مسائل و تکلیفیں حل ہو جائیں۔ مجھے ایسا وجود اس جلسہ میں مل گیا جس نے مجھے بدل کر رکھ دیا۔ میں نے بیعت کر لی، اور بیعت کرتے وقت مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں خدا کے قریب ہو گیا ہوں۔ ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ بھی ایک ایسی عورت کا ہے جو ایک بوڑھی عورت کا ہے جو فصل بوتی تھی، ایک کسان تھی۔ بینن کی ایک جماعت میں ایک عورت بہت پریشان رہتی تھی، وہ فصل بوتی تھی لیکن اچھی نہ ہوتی تھی، ایک سے گزارا ہو سکے۔ چنانچہ وہ ایک سال جلسہ سالانہ بینن پر آئی اور وہاں کے اسٹال سے حضور انور علیہ طلب نصر عزیز کی تصویر خرید کر دے گی۔ اب دیکھیں کہ کس طرح ہر ایک کا خلیفہ وقت سے جو محبت کا تعلق ہے، جو پیار کا تعلق ہے، جو عقیدت کا تعلق ہے، جو اس مبارک وجود سے فیضیاب ہونے کا تعلق ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے رنگ ہیں، اپنے اپنے نرالے رنگ ہیں، نرالے طریق ہیں۔ وہ بیان کرتی ہے کہ میں بک سٹال سے حضور انور کی تصویر خرید کر لے گئی اور روز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ اے اللہ، تصویر کو دیکھتی اور روز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ اللہ میں اس امام کی جماعت سے تعلق رکھتی ہوں، جن کی دعائیں سنی جاتی ہیں، میری بھی دعا سن، میری فصل اچھی کر دے۔ چاچہ ہمارے وہاں کے مبلغ لکھتے ہیں کہ اس بار اس کی فصل غیر معمولی طور پر بہت اچھی ہوئی، وہ بہت خوش ہے اور اس کا امجد پر ایمان بہت مضبوط ہوا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اس بات کی اب پوری طرح قائل ہو چکی ہوں کہ واقعی اللہ تعالیٰ اس جماعت کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت کی وجود سے بہت برتیں نصیب ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت کی دعائیں قبول